Good morning, class 1. Welcome back to your English class. Children, I really hope you all are doing good and also safe at your home. So, children, today we will learn chapter 4. The crocodile is happy again. And the author of this chapter is Hugh Lofting. Okay, children. So I really hope you all are excited to know about this chapter. Okay, very good, children. So I really hope you all learn and remember your previous class. So, children, please tell me what we learned in our previous class. Yes, we learned in our previous class, chapter 3, a poem to children. And in that class, we also learned about bees and their importance in our life. So, I really hope you all remember this. Okay, so now please make sure you have all the essential items with you. That is your notebook, your English book, your planner and a pencil case. Okay. So please children, let's start our class. Okay. So children, before we start our class, you have to answer me for some questions. Okay. आप लोग मेरे कुछ questions का answer दीजिए. Okay. So the question is, who is a doctor? डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर कौन है? ओके, सो यस, प्लीज थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर मी. यस, he is a doctor. So we can say a doctor is a person who takes care people by giving them treatment and medicines. डॉक्टर क्या होते हैं? डॉक्टर एक पर्सन है, हमारी तरह ही एक पर्सन है, बट ही इज़ वेल ट्रेन्ड इन मेडिसिन. और हम जब बीमार होते हैं वो हमें ट्रीटमेंट देते हैं. ओके, वेरी गुड. नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन. व्हेन डू यू गो टू अ डॉक्टर? आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? यस, प्लीज गिव योर आंसर्स. ओके चिल्ड्रन, yes, exactly. We go to a doctor when we get sick or in pain. हम जब बीमार होते हैं या हमें किसी भी चीज़ में दर्द होता है, हमारे बॉडी में जब पेन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. ओके, एंड नाउ प्लीज टेल मी, व्हाट डज अ डॉक्टर डू? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? Yes. Now look at this picture and guess the answer. So the answer is, a doctor treats sick people in hospital. डॉक्टर क्या करते हैं? जो बीमार लोग होते हैं उनको मेडिसिन देते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं और उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, जिससे हम अच्छे हो जाते हैं बहुत जल्दी. Okay, children. So I really hope you all enjoy this question answer session. Yes, very good. So now children, now moving ahead, our next question, what is a circus? Have you ever gone in a circus? कभी आप circus गए हो? Yes, most of you, आप लोग गए होगे सर्कस, है ना? So what will you see in circus? Yes, there is a joker, elephant, lion and lots of magicians and very skilled people who are playing with skills, जो हमें जादू दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं और बहुत से इंटरटेनमेंट करते हैं हमारे लिए, है ना? So children, yes, here is a circus. We have a picture of a circus. So
The answer is circus is a place where a group of people and animals perform tricks of different skill to entertain us. Okay children, सर्कस क्या है? सर्कस एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल हमारे लिए परफॉर्म करते हैं और हमको एंटरटेन करते हैं. ओके चिल्ड्रन. Okay, I really hope you all enjoy this session. So let's start our chapter, and before we start our chapter, we will have our keywords that will help us in understanding chapter more easily. Okay, जिससे हम बहुत आसानी से अपना चैप्टर पढ़ लेंगे. So please children, concentrate on your keywords and please try to learn it. Okay, so the keywords are, first keyword is hurt. HURT, hurt. It means to be in pain. चिल्ड्रन, जब हम पेन होता है, हमें दर्द होता है, तो हम क्या बोलते हैं? आई एम हर्ट. ओके. पे टू विजिट. इट मीन्स मीट समवन. जब हम किसी से मिलने जाते हैं ना, तो वी कैन यूज दिस कीवर्ड, लाइक वी पे टू विजिट हिम, वी पे हिम टू विजिट. ओके. नॉडेड. इट मीन्स क्विक अप एंड डाउन. बहुत जल्दी ऊपर नीचे करना. ओके. एंड सेकेंड, डिके. टू गेट स्पॉइल्ड. डिके मीन्स कोई भी चीज़ जब बेकार हो जाती ना, हम तो उसे डिके बोलते हैं. टू गेट स्पॉइल्ड. ओके. ओके चिल्ड्रन, वी read this again. So hurt means to be in pain, pay to visit means meet someone, nodded means quick up and down movement of the head. जब हम हेड का मूवमेंट बहुत जल्दी ऊपर नीचे करते हैं तो हम उसे nodded बोलते हैं. एंड decay, to get spoiled. Okay, I really hope you all learn these keywords. Okay, so children, now please having these keywords on your mind, let's start our chapter. So we have our today's aim. Children, today we will learn and read and also understand chapter 4, The Crocodile is Happy Again. Okay, so let's start our chapter. Please children, open your book, page number 26, chapter 4, The Crocodile is Happy Again. And the author of this chapter is Hugh Lofting. Okay. So children, please now put your finger on your book and read with me. Okay. So, it was a big day in Pudleby. Okay. सो ये कहाँ पे बहुत बड़ा दिन था? किसके लिए? पुडलबी के लिए. पुडलबी इज अ टाउन. ओके. द सर्कस हैड कम टू टाउन. एवरीवन वाज एंजॉयिंग द शो. एवरीवन बट द क्रोकोडाइल. ही वाज इन पेन. ओके चिल्ड्रन, सो पुडलबी एक प्लेस है. इट मीन्स टाउन. टाउन मीन्स क्या होता है? वेयर नंबर ऑफ पीपुल्स आर, लॉट्स ऑफ पीपुल्स आर लिव टुगेदर. जहाँ पे जैसे हम विलेज होता है ना, हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, विलेज होता है, सिटी होते हैं, सेम विथ टाउन. ओके चिल्ड्रंस, तो पुडलबी एक टाउन है जहाँ पे सर्कस होने वाला है. सर्कस आया है और सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं. बट क्रोकोडाइल इंजॉय नहीं कर रहा क्योंकि ही वॉज इन पेन, क्योंकि उसे दर्द है. ओके. My mouth hurts, he cried. कौन? क्रोकोडाइल कहता है my mouth hurts. It means मेरा माउथ पेन में है, मेरा माउथ दर्द कर रहा है. He had heard about Dr. Dolittle from other animals and decided to pay him a visit. Okay children,
सो क्रोकोडाइल ने डॉक्टर डोलेटेल के बारे में दूसरे एनिमल्स से सुना था, तो उसने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर डोलेटेल के पास जाएगा फॉर ट्रीटमेंट. ओके, सो ओपन वाइड सेड डॉक्टर डोलेटेल टू क्रोकोडाइल who was already in pain. डॉक्टर डोलेटेल ने क्रोकोडाइल से बोला, प्लीज़ ओपन वाइड, अपना मुंह थोड़ा ज़्यादा फैलाइए, मतलब बड़ा फैलाइए. और हु वॉज ऑलरेडी इन पेन, कौन पेन में था? क्रोकोडाइल पेन में था, क्रोकोडाइल को पेन हो रहा था. ही न्यू द पेन इन हिज माउथ could be because of a bad tooth. Children, bad tooth means tooth that hurt. जिस भी टूथ में, टूथ मीन्स क्या होता है? दांत, है ना? आप लोगों को पता है ना? टूथ, टीथ, यस. सो डॉक्टर को पता था कि क्रोकोडाइल को माउथ में पेन है जस्ट बिकॉज ऑफ बैड टूथ, क्योंकि उसके मुंह में बैड टूथ है, मतलब एक उसका दांत ऐसा है, टूथ ऐसा है जो हर्ट कर रहा है उसको. ओके, एंड देन यस, नाउ कम टू द पेज नंबर 27. ओके, यू मस्ट बी फाउंड ऑफ स्वीट्स सेड डॉक्टर डोलेटिल. डॉक्टर डोलेटिल ने क्रोकोडाइल से बोला कि तुम पक्का स्वीट बहुत खाते हो, मतलब फाउंड ऑफ मतलब शौकीन. ओके, जब हम कोई चीज़ के शौकीन होते हैं ना, जब हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो हम उसके लिए फाउंड ऑफ का यूज़ करते हैं. तो डॉक्टर ने बोला तुम पक्का स्वीट खाने के बहुत शौकीन हो, मिठाई बहुत खाते हो. द क्रोकोडाइल नोडेड. क्रोकोडाइल ने थोड़ा सा अपना सिर हिलाया. द स्वीट्स हैव गिवन यू दिस टूथ डिके सेड डॉक्टर डोलेटिल. डॉक्टर डोलेटिल ने बोला कि मिठाई खाने की वजह से, स्वीट्स खाने की वजह से आपका टूथ क्या हो गया है? स्पॉइल्ड हो गया है, मतलब बेकार हो गया है. स्लोली एंड केयरफुली डॉक्टर डोलेटिल रिमूव द डर्ट एंड पुट सम फिलिंग इन द बैड टूथ. धीरे धीरे डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर ने वो बैड टूथ को क्रोकोडाइल के मुंह से निकाल दिया और उसमें फिलिंग कर दी. ओके, सून द डॉक्टर वॉज डन. जल्दी डॉक्टर ने ये काम कर दिया. द क्रोकोडाइल वॉज स्टिल सैड एज ही वॉज स्टिल इन पेन. क्रोकोडाइल अब भी बहुत सैड था, जैसे कि उसको अभी भी पेन हो रहा था. To take him feel better, the animals brought some balloons. और एनिमल्स ने सोचा कि क्रोकोडाइल को खुश करने के लिए क्या करें, तो वो क्रोकोडाइल के लिए बहुत सारे बलून्स लेके आए. ओके चिल्ड्रन, सो आई रियली होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर. यस, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई रियली होप आप सब लोगों को भी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है. ओके, सो प्लीज़ रीड दिस अगेन इन योर होम एंड try to answer the questions. Okay, so now we have a practice time. अभी हम practice करेंगे. Okay, everyone is ready? Very good. So now children, please open your book page number 33. Yes, we have an exercise. Fill in the blanks with the help of the pictures. Children, यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दी हैं, है ना? देखिए, we can see a car, bus, aeroplane and a ship. So हमें यहाँ पे fill in the blanks में इनके नेम फिल करने हैं. ओके, so the sentence is the small green car was parked in the garage. ओके, तो हम क्या फिल करेंगे? कार. देन द बस वॉज टेकिंग ऑल द चिल्ड्रेन टू अ डे एट द फार्म. नेक्स्ट, द एरोप्लेन लुक्ड टिनी फ्रॉम द ग्राउंड बिलो. हम जब नीचे से एरोप्लेन देखते हैं तो हमें कितना छोटा सा दिखता है. यस. नेक्स्ट,
द शिप वॉज सेलिंग इन द ब्लू वाटर्स. और वाटर में कौन जाते हैं? शिप चलते हैं ना. ओके, so I really hope you all enjoy this exercise. Okay, so children, now we have another exercise, and please open page number 32. So unscramble and write the words in the left hand side column and match them to the pictures. Children, I give you some words. अनस्क्रैम्बल मतलब स्क्रैम्बल वर्ड्स हैं, वो आपको उन्हें सही से सही वर्ड करके लिखना है. जैसे मैं आपके नाम की स्पेलिंग, नेम की स्पेलिंग गलत लिख दूँ, कुछ लेटर्स मैं आगे पीछे लिख दूँ, तो आप उन्हें रिकरेक्ट करोगे ना. ओके, तो इसे अनस्क्रैम्बल करना बोलते हैं. सो आई गिव यू these words and you have to unscramble it, and then I give you some pictures. You have to match the correct pictures. Okay, so the first is, जो भी लिखा है, we can just try to figure out this word. Okay, so the correct word is कारपेंटर. ओके चिल्ड्रन, देखिए सेम लेटर्स का यूज़ करके हमने एक नया वर्ड बनाया है, कारपेंटर, एंड दिस इज अ कॉबलर. ओके चिल्ड्रन, सो हु इज कारपेंटर? यस, द कारपेंटर इज वर्किंग इन फर्नीचर. जो फर्नीचर का वर्क करते हैं, जो फर्नीचर से हमारे लिए आइटम्स बनाते हैं, उन्हें हम कारपेंटर कहते हैं. एंड हु इज कॉबलर? कॉबलर इज अ पर्सन हु स्ट्रेच अवर स्लीपर्स, है ना, हमारी जो टूटी हुई स्लीपर्स होती है उन्हें वो सही कर देते हैं, उसे हम कॉबलर कहते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव टू मैच देम. ओके, so you have to do this in your home. Rest of the words you have to do in your home. Okay, same with this. Now children, you have today's work. Unscramble and write the words in the left hand side column and match them to the pictures, as we just did in our practice session. You have to do the same. Okay, I give you some words from your book exercise, and you have to unscramble the words and match them. Okay, now children, we have answered the question. You have to answer the question in your notebook. So the first question is, why was crocodile crying? Second, what is the name of doctor? Okay children, so you have to write the answers in your notebook. Next, we have our planner work. Write the answers in your notebook. Do exercise in your book, page number 32. Okay children, so I really hope you all enjoy the class, and thank you so much. And you have to bonus question. Yes, you have bonus question of the day. So the bonus question is, who has pain in his mouth? Okay, you have 4 options and you have to select the correct answers. Okay children, so now I really hope you all enjoy the class. So thank you so much for listening me and watching the video. Thank you.